स्टैटिस्टिक्स लेक्चर 14। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। What is consumer price index? The consumer price index is used to measure the cost of living of people and is based on retail price of the selected goods constituting the consumption basket of a particular group of consumer। तो आपने इसमें consumer price index, the consumer price index is used to measure the cost of living of people and is based on retail prices of the selected goods constituting the consumption basket of a particular group of consumer। The cost of living index is always a weighted index। तो आपने इसमें the cost of living index is also a, तो आपने the fact आपने the cost of living index is always a weighted index। The consumer price index is also known as, तो आपने इसमें the consumer price index numbers are also known as, इसके लिए cost of living index numbers, retail price index numbers और price of living index numbers। तो आपने याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The consumer price index numbers are also known as, इसके लिए cost of living index numbers और retail price index numbers और price of living index numbers। तो आपने याद रखना the consumer बहुत ही the consumer price index numbers are also known as, इसके लिए cost of living index numbers, retail price index numbers, price of living index numbers। Construction of consumer price index, हम बात करेंगे construction of consumer price index। पहला क्या है? Name the steps which involves the construction of consumer price index। इसके लिए selection of consumer class, information about the family budget, number 3 है obtaining price quotations, number 4 है choice of base year, number 5 है weightage। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। तो जब भी हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना होगा तो पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस लाइक इंडस्ट्रियल क्लास, लेबर क्लास, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर लेबर, टीचर्स। तो आपने याद रखना पहले जब हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना होगा तो पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस लाइक इंडस्ट्रियल class, labor class, government employees, agriculture laborers, teachers, etc. We should select the class of consumer according to the requirement of our study। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो है इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। Information about the family budget. A sample of persons should be selected from the group and following information about their family budgets should be obtained। नंबर पहला है commodities which they consume, दूसरा है quantity of consumption, तीसरा है prices of concerned goods and services, फोर्थ है money spent on these goods and services। The items which are generally consumed may be classified into groups like food, clothing, fuel and light, हाउस रेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, मिसलेनियस। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में वो है प्राइस इंडेक्स प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट वो है ऑब्टेनिंग द प्राइस कोटेशंस। obtaining price quotations. To collect retail prices, it is very important and difficult task. The reason is that the retail prices vary from place to place, shop to shop, and even consumer to consumer. The following broad principles may be observed. पहला है रिटेल प्राइस शुड बी दोज एक्चुअली चार्जेड फ्रॉम कस्टमर्स। तो आपने याद रखो ये जो थर्ड स्टेप है किसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के लिए तीसरा स्टेप जो है वो है ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। टू कलेक्ट रिटेल प्राइसेस, तो आपने याद रखना है टू कलेक्ट रिटेल प्राइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क। द रीजन इज दैट द रिटेल प्राइस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप, एंड इवन कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। द फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल्स में बी ऑब्जर्व्ड। पहला है रिटेल प्राइस शुड बी दोज एक्चुअली चार्जेड बाय कस्टमर्स। तो आपने इसमें द रिटेल प्राइसेस शुड बी दोज एक्चुअली चार्जेड फ्रॉम कस्टमर्स। दूसरा है इन पीरियड ऑफ रेशनिंग और प्राइस कंट्रोल वायर इलीगल प्राइसेस आर चार्जेड ओपनली, सच प्रैक्टिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट अलॉन्ग विद द कंट्रोल्ड प्राइसेस। ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो है चॉइस ऑफ बेस ईयर। द बेस ईयर शुड बी द ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो आपने इसमें द बेस ईयर शुड बी द ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द करंट ईयर। नाउ फिफ्थ स्टेप जो है प्राइस इंडेक्स नंबर में वो क्या है? weightage. The importance of various items for different class of the people is different. Therefore, the selected items should be given weights according to their relative importance. There are two ways of according weights, that is quantity weights and expenditure weights.
व्हाट आर क्वांटिटी वेट्स, इसका सही है द वेट्स आर गिवन इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। तीसरा एक्सपेंडिचर वेट्स, दीज वेट्स आर गिवन इन प्रोपोर्शन टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम्स कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। उसके बाद है डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला है डिफरेंस इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, दूसरा है डिफरेंस इन प्राइसेस, नंबर थर्ड जो है वो है डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहला क्या है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, या इसको हम कहते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड। दूसरा है वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है ना। तो आपने याद रखना पहला जो है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड है फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड। पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका सही जवाब है वेटेड एग्रीगेट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इसको वेटेड एग्रीगेट मेथड। The aggregate expenditure method is similar to Lisper's method of constructing weighted index. That is consumer price is equal to P01, that is CPI. Consumer price index is equal to P01 is equal to summation of P1 Q0 divided by summation of P0 Q0 into 100. ये आपने याद रखना होगा। तो उसके बाद इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। उसके बाद जो है वो लास्ट में है वो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो आपने याद रखना तो आपने एट नेशनल लेवल हाउ मेनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर देयर, इसको 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो आपने याद रखना एट नेशनल लेवल हाउ मेनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर देयर, इसका 4। तो आपने याद रखना एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, दैट इज IW, दैट इज इंडस्ट्रियल CP। तो आपने याद रखना पहला एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 consumer price index numbers। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। दीज आर CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबर्स एंड CPI AL और L, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 consumer price index numbers, that is there are 4 CPIs, that is CPI for industrial workers, CPI for agriculture workers, CPI for rural laborers and CPI for AL and RL। ये आपने याद रखना होगा। दैट इज CPI फॉर रूरल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ये आपने याद रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर, तो आपने देखा एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, दैट इज CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा है CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, तीसरा है CPI फॉर रूरल लेबर्स एंड CPI फॉर रूरल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ठीक है ना। तो आपने देखा एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, दैट इज CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबर्स, CPI फॉर रूरल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखा। एट द नेशनल लेवल there are 4 consumer price index numbers, that is CPI for industrial workers, CPI for agriculture laborers, CPI for rural laborers and CPI for rural urban non manual employees, that is UNME। तो आपने याद रखना CPI for industrial workers, that is IW। The new series of CPI IW with the base Zisas Shara has been replaced the existing series with the base Zisas Ak। It is published by Labour Bureau Shimla। It is published by Labour Bureau Shimla। तो आपने देखा the CPI for industrial workers is published by, इसके पे Labour Bureau Shimla। उसके बाद है CPI for agriculture laborers, that is AL, CPI for rural laborers, that is RL and CPI AL RL currently has the base year 1986 to 87 published by Labour Bureau। CPI for
CPI फॉर रूरल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, दैट इज UNME, ठीक है ना। UNME स्टैंड्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ये आपने याद रखना होगा। द CPI UNME दैट इज अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज इज पब्लिश्ड बाय CSO, ये आपने याद रखना होगा। इसके साथ ही जो स्क्रीनशॉट्स जो थे मिलेक ट्यूटोरियल से, उससे हमें प्राइस इंडेक्स नंबर्स खत्म होते हैं।